वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का सत्र 2021 में स्वागत है। कोविड की वजह से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही हैं, जैसा आपको जानकारी भी है। अभी फिलहाल वर्तमान में ब्लैक बोर्ड टीचिंग संभव नहीं है। जैसे ही संभव होगी आप लोगों को हम लोग ब्लैक बोर्ड पर सारी चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे। जिस तरीके से आपके सेकेंड ईयर में 3 पेपर थे, इसी तरीके से आपके इस वर्ष भी 3 पेपर हैं थ्योरी के। फर्स्ट पेपर आपका फाइनाइट डिफरेंस एंड नॉन पैरामेट्रिक, सेकंड पेपर अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड प्रॉब्लम इज लीनियर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम होने की परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कभी भी कोई समस्या किसी भी लेक्चर में आ रही है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट स्लाइड। In the paper second, there are the 4 chapters: time series, wide statistics, index number, quality control. What is the time series? जैसा आप समझ रहे हैं कि जो सीरीज हमारे टाइम पे बेस्ड हो वो कहलाती है टाइम सीरीज। जैसे हमने कहा प्रोडक्शन ऑफ बीट एनुअली इन खुर्जा, population of India after every 10 years, prices, production, sale demanded at different times. This is a time series. Or you may define, there are so many definitions. By time series we means statistical data that are collected, observed or recorded at regular interval of time. Here we say a set of observations taken over a period of time is called time series. The unit of time may be a year, month, day, an hour, minutes, etc. Right? Now, one may say, given time is not variable, is time series is possible? Yes, time series is possible. Width or depth of river at different points. दिस एग्जाम्पल, यहां पर आपने टाइम को ओवरलूड कर दिया। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज,
तो पहले आप देखिए कि मेन कॉज ऑफ वेरिएशन इन टाइम सीरीज के अंदर क्या कारण है कि जो वेरिएशन होता है। एक तो होती जनरल टेंडेंसी ऑफ द चेंज, सीजन्स, सोशल कस्टम, फेस्टिवल, business cycle, prosperity, decline, depression, recovery, nature climatics, earthquake, epidemic, flood, drought, famine, fire। ये आपने देखा एपिडेमिक चल रहा है इस समय, कोविड-19 एपिडेमिक का रूप ले चुका है इसके अंदर। आपदा का, आपदा में क्या हुआ कि बहुत सी चीजें एक साथ स्टॉप हो गई, बहुत से काम धंधे रुक गए अपना, और कुछ काम धंधे बढ़ गए। ये दिया था एपिडेमिक क्या है, दिस इज ए नेचुरल क्लाइमेट, पॉलिटिकल कॉजेज, वॉर एटसेट्रा। The movement caused by such forces in a time series may be classified into different categories called the component of time series. The movements जो भी मूवमेंट हुआ, the movements caused by such forces in a time series may be classified into different categories called component of time series. So, how we can classify time series may be classified in the regular movement and irregular movements. Irregular movements is also called regular fluctuation, regular regular, again listen, time series may be classified into two parts: random regular movements and irregular movements. Irregular movements is also called random variation. Yeah, you say random component or random fluctuation. Regular movement again classified in a long-term variation and short-term variation. And short-term variation again classified in a seasonal variation and cyclical variation. Long-term variation is also called trend or secular trend. So by all means, the time series has four components: trend, yeah, you say secular trend, next one seasonal variation, cyclical variation, and last one is random variation. It is very clear, much clear. How many components? Four components: trend, seasonal variation, cyclical variation, and random variation. Suppose आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। You know how many components? 4. So you will say answer is D. तो आपको क्या करना होगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट्स के अंदर या मैथमेटिकल पार्ट्स के अंदर आपको इन क्वेश्चंस को सर्च करना होगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देखने होंगे आपको इसके अंदर, और आपको बहुत ही डिटेल स्टडी इसके अंदर सारी थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ना होगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। One by one we will discuss the components. Trend, here you say secular trend. What is trend? Trend is the tendency of data to increase or decrease over a long period of time. ट्रेंड क्या बताता है? डाटा की प्रवृत्ति को बताता है कि लंबे समय में कि कितना, क्या इंक्रीज, क्या बढ़ रहा है या घट रहा है। The long period of time cannot be defined precisely. In some cases, it may be short as 10 years, while in other case, it may be as long as
100 years or even more. But the increase or decrease must be gradual and steady. Must be gradual and steady. There should be no sudden jump in the value of variable. A series may be however change after a long period of increase or vice versa. लंबे समय के बाद ही कोई सीरीज या तो बढ़ेगी लंबे समय तक या फिर उसके बाद ही कम होगी. The trend is a very important thing. Trend may be upward or as well as downward. Trend may be upward or downward. जैसे हमने कहा कि population of India after every 10 years. You know, last census was held in 2011. Yes. उससे पिछला हुआ था 2001 के अंदर. इसी तरीके से डेथ रेट, प्राइजेस, गोल्ड प्राइजेस आफ्टर एवरी 10 years. मैंने आपसे कहा कि इसका टाइमिंग 100 years और इससे ऊपर हो सकता है. जैसे आपने देखा होगा फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स. आपने रॉक्स का आपने देख सुना होगा अपना कि बहुत कि आज कहीं भी एक द्वीप बन गया, समुद्र के अंदर द्वीप बन गया. ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, ये इससे लॉन्ग टर्म प्रोसेस, वेरी लॉन्ग, 100 साल, 500 साल, 1000 साल इस तरीके से अपना. और आप देखेंगे कि कुछ द्वीप धीमे धीमे विलुप्त होते चले जा रहे हैं. वो क्या सारी चीजें, ये सारा एक ट्रेंड है. विलुप्त हो रहा है तो डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया, और बढ़ रहा है तो हो जाएगा अपवर्ड ट्रेंड. राइट. नेक्स्ट टर्म इज सीजनल वेरिएशन. जैसा आप नाम देख रहे हैं सीजनल, क्या मतलब सीजनल का? सीजनल वेरिएशन आर दोज वेरिएशंस which repeat themselves regularly almost at specified times during a year. जो इसका टाइम होगा वो 1 साल या 1 साल से कम होगा. राइट. ऐसे वेरिएशन को हम बोलते हैं सीजनल वेरिएशन. These variations are generally due to change in seasons, habits and custom of the people. ऐसे आप देखते हैं कि नाउ रेनी सीजन चल रहा है. रेनी सीजन के अंदर आपके पास रेन कोट्स और अम्ब्रेला की डिमांड कंपेरेटिवली बढ़ जाती है. इन समर आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक डिमांड. In a festival season, demand of sweets. इसी तरीके प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, सेल ऑफ वूलन क्लोथ्स, etc. These are the various examples of seasonal variation. तो इससे होता क्या है? These are the effects or results of seasonal factors. These are the effects or results of seasonal factors, such as climatic conditions, holiday, business, operations, or human habits and festival. Right? तो आप ये सोचेंगे सर इसका फायदा किसको होगा, इसका बेनिफिट किस व्यक्ति को होगा? द स्टडी ऑफ
Seasonal variation is very useful for businessmen. बिजनेसमैन को इसका सबसे बड़ा फायदा होता है, बिजनेसमैन इसके अकॉर्डिंगली अपने काम को आगे बढ़ाता है कि हमको किस तरीके से कम किस चीज की डिमांड उठेगी, कब किस चीज की प्राइसेस कम होंगी, कब किसकी प्राइस ज्यादा होंगी, वो उसके अकॉर्डिंग से अपने वर्क को चॉक आउट करता है, राइट। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए ऑब्जेक्टिव के अंदर कि ऐसी कंपाउंड का नाम बताइए आप कि जिसका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है। उन्होंने आपके पास चारों कंपाउंड के नाम भी रखे हैं, ट्रेन, सीजनल, साइक्लिकल या नन ऑफ दी अबव। तो यू शुड बी क्लियर कि दैट इज द सीजनल वेरिएशन। नेक्स्ट वन इज cyclical variation. The period of cyclical variation is more than that of seasonal variation, but less than that of trend. इसका भी पीरियड है साइक्लिकल वेरिएशन का, वो सीजनल से ज्यादा और ट्रेंड से कम होता है। या कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो having a period of oscillation more than a year, इसका जो समय है वो 1 साल से अधिक है। साइक्लिकल वेरिएशन आर पीरियडिक which repeat them after a period of 5 to 12 years. साइक्लिकल वेरिएशन जो पीरियड है वो क्या रिपीट करता है, तो उसका पीरियड 5 से 12 साल। These variations are often found in trade and business. आप देखते हैं व्यापार के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है, तो वो उसका जो पीरियड है वो 5 साल से लेकर 12 साल तक। जैसे आपने देखा कि एक टाइम में रियल एस्टेट बहुत हाइप ले गया था, तो ऐसा नहीं एक दिन में हाइप ले गया, वो 5 साल ज्यादा बढ़ा और अब क्या होगा, धीमे धीमे डाउनफॉल आ गया। इसका मतलब ये नहीं आज डाउनफॉल है तो अपवर्ड नहीं आएगा, फिर 5-7 साल बाद फिर इसका अपवर्ड ग्रेजुअली शुरू हो जाएगा। तो इस साइकिल को दिस पीरियड shows the prosperity and depression in almost every trade and trade, which is known as business cycle. इसको हम बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं, साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन is also called business cycle. These variations are very often found in share market, share prices. Share prices is the best example of cyclical variation. Right? Next one is random variation. There is a random component. Besides regular movement in a time series, there are fluctuations which occur quite sudden. These variations are generally due to the natural climatics such as fire, flood, drought, earthquake, war, etc. अभी इससे रिसेंट एग्जाम्पल आपने भी देखा कि फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन चल रहा था, ऑल ऑफ सडन एपिडेमिक के कारण, कोविड-19 के कारण सारी इंडस्ट्री कुछ समय के लिए बंद हो गई। तो क्या हो गया, उनका प्रोडक्शन चल रहा था प्रॉपर तरीके से, आइदर इट मे बी इफेक्ट ऑफ ट्रेड, सीजनल, साइक्लिकल, व्हाटएवर इट मे बी। तो ये क्या कहलाता है, सारा चीज स्टॉप हो गई, दैट इज कॉल्ड random variation, and here you say random fluctuation.
ये कभी भी किसी भी कंपोनेंट में संभव है। देखिए बोलते बिन बुलाए मेहमान हाजिर हो गए। आपका फायर आग लग गई, कहीं भी बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक हो गया, वार हो गया, महामारी फैल गई, जैसे आजकल चल रहा है कोविड-19 का दौर, और इतने जमाने से समझ लीजिए आप, द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री may go down suddenly due to strike or fire. The agriculture production may be low due to drought or flood in the region. The price of essential goods may shoot up during curfew or war, etc. That is the most important thing. We cannot predict the irregular fluctuation. We cannot predict the random variation in advance. It comes all of sudden. Okay. I think it is very much clear. Now we have discussed all the components. Last topic of today's lecture, analysis of time series. हम लोग एनालाइज ऑफ टाइम सीरीज के अंदर क्या करते हैं? टू डिस्कवर एंड मेजर द इफेक्ट ऑफ दीज कंपोनेंट. टू डिस्कवर and measure the effect of the various time series components and to isolate them individually is known as analysis of time series. टाइम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज क्या करती है? हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज के द्वारा उन कंपोनेंट को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं. तो क्या हुआ? द मेन प्रॉब्लम ऑफ इन द एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज इज टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंपोनेंट. हमको डिफरेंट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, कंपोनेंट्स को या फैक्टर को, एट वर्क एंड टू. पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद उनको आइसोलेट करना होगा, स्टडी करना होगा एंड मेजर कम करना होगा इंडिपेंडेंटली. So we have to obtain the maximum possible information from given data arranged in chronological order. I think आज के लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है. आप लोग इस पे स्टडी कर लें अपना सारी चीज़ों को, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे, मेरा मोबाइल नंबर आपके पास सभी के पास है, ईमेल आईडी है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. In the next lecture, we will discuss the importance of the time series and mathematical models of time series. Okay, thank you.